In today's class, we'll learn about the effects of oxidation. In our previous class, we have studied about the oxidation and reduction reactions. So what is oxidation? Just recall it again. Oxidation is the addition of oxygen to any reaction or the removal of hydrogen from any reaction, from reactant to product side. So now, the effect of oxidations are also there. So first effect is corrosion, the harmful effect, right? It is on the metal surfaces. How it is? The process of slow, what it is, the process of slow conversion of metals into their undesirable compound that is not required due to their reactions with oxygen, water, acids, gases, etc. present in the atmosphere is called the corrosion. Corrosion is the main word, right? And when the corrosion is being there on the iron metal, then it is known as rusting. Alright, rusting जिसको आप हिंदी में जंग लगना भी कहते हैं. मेटल की जो आयरन की सरफेस होती है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, आर्टिकल्स हैं मेटल्स के, आयरन के एक ब्राउन रेडिश ब्राउन कलर की उस पर लेयर्स जम जाती है, दैट इज़ कॉल्ड द रस्ट. और ओवरऑल जो और भी मेटल्स पे होता है उसको हम कोरोजन बोलते हैं, जिसकी वजह से आपका मेटल डैमेज हो जाता है और वो धीरे धीरे वो एक के बाद एक लेयर अगर होती रहे तो पूरी तरह से वो ऑब्जेक्ट, वो आर्टिकल डैमेज हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता. सो रस्टिंग इज़ व्हाट इन रस्टिंग आयरन व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, ये दोनों चीज़ें बहुत रिक्वायर्ड हैं तभी रस्ट फॉर्मिंग होगी. अगर एक भी कम होगा देन द रस्ट विल नॉट फॉर्म. ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर फॉर्म अ रेडिश ब्राउन, रेडिश सब्सटेंस और रेड सब्सटेंस और रेडिश ब्राउन सब्सटेंस विच इज़ कॉल्ड द रस्ट, और इसी को हम रस्ट बोलते हैं. एंड यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड that rusting can be prevented by painting. You all have seen most of the objects like door are there, boxes are there, or some kinds of your bicycle is there. So a layer of paint is being applied over it. By painting you can prevent it. By painting, how it is being prevented, then moisture and oxygen will not react on its surface, so it can be prevented by greasing or oiling. If you apply oil, grease regularly to the object, just you can see that your cycle chain grease is always there on it, and hence it is being prevented from rusting because the oil, it prevents reaction of oxygen and moisture from its surface. And one more thing, galvanization. Galvanization is what it is: applying of a metal, a layer on the surface of iron like zinc that is not causing any kind of rust, corrosion is not there on it. So by this also iron article, iron objects can be prevented. You must have seen a shiny metal, uh, your roof railings are there, when the stairs are there, stair railings are there, on it a very shiny surface, that is iron, but shiny surface are there, that is of because of galvanization. So a layer of zinc can be applied on it, that cannot be corroded. Another one, corrosion of copper. Copper is also a metal जिसको आप हिंदी में तांबा बोलते हैं. सो कॉपर ऑब्जेक्ट लूज देयर लस्टर. कॉपर शाइनी होता है, वो अपनी शाइनीनेस, लस्टर एंड शाइन दे लूज आफ्टर सम टाइम बिकॉज द सर्फेस ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स एक्वायर्स अ ग्रीन कोटिंग. इस पर किस तरह की कोटिंग हो जाती है? इस पर रेडिश ब्राउन नहीं, ये खुद ही रेडिश ब्राउनिश कलर का होता है. it coating of green color is being there because of this corrosion की वजह से इसके ऊपर ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है. बेसिक जिसमें होता है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर की हाइड्रोक्साइड फॉर्म में व्हेन एक्सपोज टू एयर, जब ये एयर की प्रेजेंस में रहता है तो इसके ऊपर एक ग्रीन कोटिंग की ग्रीन लेयर जम जाती है जो कहलाता है आपका corrosion of copper. This can be prevented by washing the copper utensil, metal again and again. It can be prevented, but you have to clean it. Next is corrosion of silver metal. Though silver is less reactive
then also it is being corroded. You can see the jewelry that are present at home of your mothers or sisters. Corrosion of silver metal, how it is being this, the surface of silver metal gets tarnished, becomes dull. वो शाइनी होता है सिल्वर, राइट, सो वो डल हो जाता है ऑन एक्सपोजर टू एयर, एयर के एक्सपोजर में वो बहुत डल हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कोटिंग ऑफ ब्लैक। देखो इस पर कैसे कोटिंग होती है, ब्लैक कलर की, ब्लैक सिल्वर सल्फाइड फॉर्मेशन हो जाता है। एंड हियर इज द फॉर्मूला, सिल्वर sulfide on its surface by the action of H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की फॉर्मेशन की वजह से प्रेजेंट इन एयर, यहाँ पे हो जाती है क्या, कोरोजन आयरन में, ठीक है, सॉरी सिल्वर में। सो दिस इज़ कोरोजन ऑफ सिल्वर मेटल। जबकि ये बहुत कम रिएक्टिव है फिर भी इस पर ये कोटिंग हो जाती है, ब्लैक कलर की शाइनी सरफेस हो जाती है, शाइनी सरफेस डल हो जाती है, ब्लैक कलर की लेयर इस पर डिजॉल्व हो जाती है, तो वो हम कहते हैं कि सिल्वर पे भी वो कोरोजन हो गया है, राइट। आफ्टर दैट एक और पॉइंट है जिसको हम कहते हैं रैंसिडिटी। यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है लेकिन किसी मेटल पे नहीं, इट इज़ ऑन फूड, फूड के जितने भी मटेरियल हैं उनमें, स्पेशली द ऑयली वन, द टेस्ट एंड द ऑर्डर ऑफ फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट और ऑयल, जिसमें ऑयल और फैट होगा, चेंजेस, इसमें ऑर्डर उसका टेस्ट चेंज हो जाता है व्हेन दे आर लेफ्ट एक्सपोज्ड टू एयर। जब वो एयर से एक्सपोज्ड बहुत ज़्यादा टाइम तक रहें तो वो हो जाते हैं ऑक्सीडाइज्ड, और जिसको हम कहते हैं रैंसिडिटी, राइट। अगर आपके घर में कुछ ऑयली सब्सटेंस, ऑयली फूड मटेरियल रखा है, लाइक चिप्स आर देयर, or when you bring the Lay's packets or Kurkure packets, after if it is being opened and left for few days, what you see that its taste is being changed, उसका taste ना change हो जाता है। This is all because of rancidity, क्योंकि वो उस पर एक ऑयल की एक फैट की लेयर होती है, वो हो जाती है ऑक्सीडाइज, जिसकी वजह से उसका टेस्ट, उसका ऑर्डर, उसकी स्मेल चेंज हो जाती है। इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू दी, और होता क्यों है, वही ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल। फूड मटेरियल में ऑक्सीडेशन होने की वजह से हो जाता है। इसीलिए आप देखते हो कि आपके जितने भी फूड पैकेट्स प्रोसेस्ड वाले होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, इट्स अ गैस इज filled in it, like कुरकुरेज आर देयर, लेज आर देयर, दिस थिंग। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए रैंसिडिटी को, व्हाट वी कैन डू बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, हम उनमें ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर दें फूड मटेरियल में, तो वो हमारे ऑक्सीडाइज्ड होने से बच जाएंगे। जैसे कि BHA एक एंटीऑक्सीडेंट्स है। वैक्यूम पैकिंग, हम बिना किसी एयर के प्रेजेंस के हम उसमें पैकिंग करें, दैट इज़ कॉल्ड एज वैक्यूम पैकिंग। एंड रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, उसमें कोई कॉमन एयर फिल होने से बजाय नाइट्रोजन फिल हो, जैसे कि आप लेस के पैकेट कॉमनली कुरकुरे पैकेट लेके आते हो और गैस इज फिल्ड इन इट, तो वो क्या होता है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की वजह से क्या होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। वहाँ पे कॉमन एयर होती है तो ऑक्सीडेशन बहुत इजीली हो जाता है, बिकॉज ऑफ वो कॉमन एयर को हम रिप्लेस कर दें नाइट्रोजन से, या हम फूड मटेरियल्स को रेफ्रिजरेट करें। रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड मटेरियल शुड बी डन रेगुलर बेसिस पे। सो इससे हम रैंसिडिटी ऑफ फूड मटेरियल से बच सकते हैं, अपने फूड को बचा सकते हैं ख़राब होने से। सो दीज आर द टॉपिक दैट हैज़ बीन एंडेड ऑफ द चैप्टर। In our next class, I'll give you some question that you can do for practice of this chapter. So this is it there in this class.